Okay, hello everyone, welcome back. So, in yesterday's video, we have talked about the electric potential difference, electric potential and potential difference. Okay, so today we are going to continue that topic, and from that we will revise a little bit, and from previous topic we will continue to further. Okay, so let us see what is electric potential. Yesterday also we have told that electric potential is the physical property. It is a physical property which determines the flow of charge between two bodies. है ना? It determines the flow of charge between two bodies. Suppose that one body is at a higher potential and another body is at a lower potential. So this is lower potential point. This is lower potential point, and this is higher potential point. Okay, so let us consider this is point B and this is point A. Now if we have to move a charge, the charge is Q. Suppose that a charge is Q. So let us say if we have to move a charge Q from a lower potential point A to higher potential point B, then what we have to do? We will have to do some external work because we are moving from low potential to high potential, है ना? So we have to put some extra work. So this extra work will be equal to the work done. So this work done, that whatever work we are doing, it will also convert or it will also save in some form of energy, है ना? So this is saved in the form of potential difference. So we will write it as the potential difference as VB minus VA is equals to W by Q. Yesterday also we had given this example. Okay, now let us continue. What does it say? When we charge a body, some work has to be done. Obviously, this work done is stored in the form of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो जो भी हम वर्क डन किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए करते हैं, तो जितना भी वर्क डन कर रहे हैं वो क्या करेगा, वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में सेव होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल और सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज है, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल कहते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको डिनोट किया जाता है वोल्ट से. इसकी यूनिट होती है वोल्ट और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल V से. ठीक है, इसके रिगार्ड कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी से. व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एनालोगस टू हाइट. जैसे कि ये कह रहा है कि जैसे हाइट के एग्जांपल हमने कल का जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर क्या बताया था कि जो ये दिस वाटर, द वाटर इज सिचुएटेड हियर, दिस इज द वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, एंड वाटर इज सिचुएटेड हियर, है ना? And we have to move this water to a tank which is situated on the roof of the house. Okay, then what we have to do? This is the ground level. So we said that we have to use an external motor so that it can suck up and rise the water into the tank. So it is saying that it is similar to the or analogous to the height in case of gravitational potential. We see that in case of gravitational potential, height is the main thing, है ना? Height is the main thing which determines that the object will have some potential energy or not. Similarly, in charges, electric potential will be the key factor which will tell us from where to where the energy flow will happen. Like suppose that one point is A and another point is B, and we are saying that its potential at point A is VA and potential at point B is VB, and
VA is greater than VB, then what will happen? Then the charge will automatically flow from higher potential to lower potential, means point A to point B. But if we have to flow a charge from point B to point A, then we need some external work. This will be stored in the form of potential difference. Okay. Next, potential at any point uh, potential at any point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from infinity to that point against the electric field. Now, what is the definition of 1 volt, or simply if we have to define the electric potential, then how can we define that? Electric potential, we have seen electric potential difference, but we have not defined what is electric potential. So how would we define the electric potential? We have seen VB minus VA is equals to W by Q. This was when we had 2 points A and B, and charge has to flow between these 2 points, है ना? Now suppose that if sorry, this is we have used the wrong symbols here. Okay, now this is VB and this is VA. Again VA and VB, VA minus VB. Now suppose that VB is at lower potential point, so we have this difference VA minus VB equals to W by Q. But suppose that VB, value of the VB is 0. So if VB becomes 0, then what will happen? Then VA minus 0 will be W by Q, or simply VA will be equals to W by Q. So this will represent the electric potential at point A. It will represent the electric potential at point A. So when the value of the potential at point B will be 0, it will happen when the B point is at infinity from the point A. If the B point is at infinity, from point A, then the electric potential will be 0. ठीक है, तो याद रखना किसी भी पॉइंट से अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस पर हम अगर पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है. तो 0 होती है तो क्यों होती है, इसका रीजन जल्दी से समझ लेते हैं. सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास में कोई एक चार्ज है Q, ठीक है, ये हमने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है. अब हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज होगा तो उसके चारों ओर उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई दूसरा, मान लो कि यहाँ पे हमने कोई स्मॉल Q अमाउंट का दूसरा चार्ज लेके आए, तो होगा क्या, अगर ये भी पॉजिटिव है, इन दैट केस इट विल रिपेल दिस चार्ज. ये क्या करेगा, प्लस Q चार्ज जो है, प्लस स्मॉल Q चार्ज को रिपेल करेगा. लेकिन जैसे जैसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस जो है बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये जो रिपल्शन फोर्स है ये वीक होता जाएगा. क्यों? क्योंकि वी हैव सीन फ्रॉम द कूलम्स लॉ that F is inversely proportional to R square. So
ऐसे ही मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये सपोज करो ये डिस्टेंस जो है बढ़ते 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 कहाँ तक हो जाए, हमने कहा ये एट इन्फिनिटी पहुंच जाए, तो जब r की वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी तो f की वैल्यू उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जीरो। और f की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब वहां पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। जब फोर्स जीरो है तो कोई वहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब वहां पर वर्क डन भी जीरो होगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स ही नहीं है, फोर्स की वैल्यू ही जीरो है, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। और जब वर्क डन जीरो हो गया तो इस कंडीशन में इसके ऊपर पोटेंशियल पॉइंट भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी चार्ज से इन्फिनिटी पॉइंट पर, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर इसकी पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। So we have seen the formula here like this. This is the formula, VA minus VB equals to W by this is Q, W by Q। W जो होता है उसकी यूनिट होती है जूल में, और Q जो होता है उसकी यूनिट लेते हैं हम कूलम्स में, तो ये हो गया जूल पर कूलम। इसी चीज को हम कहते हैं वोल्ट, इसी को हम कहते हैं वोल्ट। क्लियर है? नाउ अब अगर हमें डिफाइन करना हो कि व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की वैल्यू, 1 वोल्ट की डेफिनेशन अगर हमसे कोई पूछे तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। सो व्हाट इज 1 वोल्ट? चलो फॉर्मूला हम लेते हैं सबसे पहले, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये हमने कहा था। इस W बाई क्यू में हमने कहा कि अगर W की वैल्यू 1 जूल कर दें और Q की वैल्यू 1 कूलम कर दें तो क्या होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 1 वोल्ट के बराबर। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिखते हैं, डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। क्या कैसे लिखेंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज is moved from a point, from a lower potential point to a higher potential point, lower potential point to a higher potential point, such that the work done is equals to 1 joule, then the electric potential between those points will be equal to 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 1 वोल्ट की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर है? तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या बताएगा कोई, कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन, 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, देन द potential difference between those 2 points will be equals to 1 volt. Okay, next topic is Ohm's law. What is Ohm's law? ओम वाज ए साइंटिस्ट, ओम एक साइंटिस्ट है जो कि अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे उन्होंने अपना एक लॉ दिया था। वो लॉ रिप्रेजेंट करता था वोल्टेज को और करंट के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता था, या उनके बीच में इंटर रिलेशन जो है उन्होंने फाइंड आउट किया था। उन्होंने क्या देखा कि सपोज करो हमारे पास में कोई एक स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर है या स्ट्रेट वायर है। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रेट वायर ले लिया, ये है ए और ये है बी। इसकी लेंथ मान ली हमने कुछ भी, लेंथ मान लीजिए एल है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसको आप कनेक्ट कर देंगे
एक्सटर्नल पावर सोर्स के साथ में कनेक्ट कर दिया। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल पावर सोर्स के साथ में। तो ये है बैटरी, इस बैटरी का कोई ना कोई पोटेंशियल होगा V, ठीक है। और बैटरी में पोटेंशियल है तो हम सीधी सी बात है चार्ज का फ्लो होगा, यानी कि करंट का फ्लो होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो करंट जो फ्लो हो रहा है दैट करंट इज I। ये जो है यहाँ पे जो K लिखा हमने, ये K जो है ये K क्या चीज है, K है की का मतलब हो गया कि जब की हम यूज करेंगे तो उसके बाद ही करंट का फ्लो जो है इस सर्किट के अंदर होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ओम ने अपना क्या लॉ क्या देखा, इन्होंने अपना वैल्यूज को प्लॉट किया और प्लॉट करने के बाद में एक रिजल्ट निकाला कि अगर एक्सटर्नल कंडीशंस को हम क्या कर दें, कांस्टेंट मान लें, कीपिंग द एक्सटर्नल कंडीशंस और फिजिकल कंडीशंस, एक्सटर्नल और फिजिकल, एक्सटर्नल और physical conditions as constant, then the current flown in a conductor is directly proportional to the external voltage or potential difference applied, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अगर हम एक्सटर्नल और या फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट मान लें, देन इन दैट केस द करंट फ्लोन इन ए कंडक्टर, यहाँ पर कंडक्टर क्या है, अभी हमने जो ये ए बी जो लिया है, ये ए बी जो है ये कंडक्टर का काम कर रहा है ना, ये जो है ए बी ये कंडक्टर का काम कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जो कंडक्टर में से करंट जो फ्लो होगा, ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितना हमने एक्सटर्नल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है उसके। सो वी कैन राइट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I करंट। और जब ये प्रोपोर्शनेट का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। सो दिस कांस्टेंट टर्म इज R, दिस कांस्टेंट टर्म इज R। ये जो R है, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, R is the resistance of the wire, R is the resistance of the wire, so V is equals to IR। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि अगर हम R की वैल्यू फाइंड आउट करें या सिंपली एक रेशियो फाइंड आउट करें वोल्टेज अपॉन करंट का, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक कांस्टेंट होगी और ये कांस्टेंट टर्म हमेशा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के बराबर होगी। क्लियर है, ओके। सो अब देखिए यहां से रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस को हमने वापस से सेम चीज लिखी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई I, यानी कि करंट की फॉर्म में लिखा था। अब ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम कहते हैं कि सर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी यूनिट को हम लिखते हैं वोल्ट में, इसकी जो यूनिट होती है ये होती है वोल्ट में, और जो करंट होता है इसको हम लिखते हैं सर एम्पियर में। तो इसका मतलब क्या हो गया, R जो है, R की यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम, OHM, ओम से, और इसका सिंबल जो है उसको बनाया जाता है ओमेगा। ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम कहते हैं ओमेगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसकी वैल्यू हो गई वोल्ट पर एम्पियर के बराबर, सॉरी इसकी वैल्यू हो गई वोल्ट पर एम्पियर के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर।
तो इसी तरीके से अगर हमें 1 ओम की भी डेफिनेशन देनी होगी तो वो भी हम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? सिंपली वन वन ओम 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यहाँ से इसी डेफिनेशन क्या बनेगी कि इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट हैज टू बी flowed in a within a potential difference within a potential difference of 1 volt, then the resistance of conductor will be equals to 1 ओम। ठीक है, तो ये हो गई हमारे लिए 1 ओम की डेफिनेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आज का लेक्चर हम यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, कंडीशंस क्या क्या बैठेंगी और रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसे कैसे बैठते हैं, उन सब की डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू। ओके।